Yes, okay. So let us start with the session. Okay. In the previous session, that is yesterday, we have done the basic or the OSI. We have started with the reference model. That is the first layer of the OSI reference model. After that, we have gone through the first layer, that is the physical layer. Okay, it was the physical layer. So we have started with the introduction part of this OSI reference model. What is it basically? And it is developed by that is ISO, International Organization for Standardization. Okay, and it provide a conceptual framework so that we can understand the complexities inside the network. Okay, so a basic delivery of a single packet of a data from one machine to another machine can be easily understood by this um, reference model. Okay, in this reference model you will find seven layers. Okay, starting with the physical. Okay, you will name it from the bottom to top or top to bottom, it's up to you. Okay, just for the remembering purpose, it is always recommended that you start from the bottom, that is from physical layer. So physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session, presentation, and application. So you can easily remember because I am used to with all these layers, so I know the sequence of these layers. So for understanding, at the initial level, for understanding and for remembering these layers, you can remember one statement: please do not throw sausage pizza away. Okay, so if you remember this statement, then you can easily come to know and you will easily remember these layers. Okay, so these are the layers. Okay, this is the left side is of the sender side and the right side is of the receiver side. Okay, so when the packet or the data is going from a sender to the receiver, so basically it is going. Okay, but so basically it is passing from all the layers. Okay, and all the layers do their function, perform their function, their level function, and they will pass the things to the next layer. Okay, in the same way the things goes on to the destination via any transmission media. As you can see at the bottom, that is the physical communication. So it may be a physical communication, that is maybe a wireless or wired communication. Okay, so using any transmission media, your data will be transferred to the next, that is the destination, next machine, that is destination. Out of these layers, from 1 to 4, these layers are considered as the lower layer, and 5 to 7 are considered as the upper layers. Okay. Okay, coming to the first layer, we have started with the first, the basic and the specific job which it perform. About the physical layers, is the first layer convert data into bits, raw bits, and vice versa. Okay, define the data rate also. कितना data एक time में जाना चाहिए. So it defines the data rate. It is also responsible for the synchronization, then signal to bits and bits to signal, that is vice versa. Okay, as you can see the diagram, it is getting some data, some data it is taking from the data link layer, from the upper layer, and is passing to the transmission media, because behind, below the physical layer, sorry, below the physical layer there is no other layer. Okay, so it is directly putting the things on the transmission media. Actually, I forgot to start the recording. Okay, someone has started. Thank you so much who has started the recording. Hmm. So now come to the next one, that is data link layer. Okay, so this is the second layer of OSI reference model. Okay, and basically this is the layer which is divided into two sub layer. Okay, आपकी जो data link layer है, it has been divided into two sub layer. The first is the MAC and second is LLC. So MAC is basically media access control, and the second is logical link control. So these are the two sub layer which are there in the data link layer. अब दोनों के कुछ स्पेसिफिक टास्क है, बिकॉज कलेक्टिवली इफ यू विल फाइंड तो डेटा लिंक लेयर के कुछ काम हैं. So those tasks have been divided into two sub-layer. One is the media access control, second is logical link control. So मैक जहाँ पर हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, आगे चल के जो हम लोग डेटा लिंक लेयर एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, so in that you will find it has a control. It will control the access of the physical medium. Okay, so you have one physical medium. Okay, you have one physical medium. Okay, for example, your twisted pair cable, your coaxial cable, your fiber optic cable, maybe anything. Okay, so you have a physical medium. So in that physical medium, कौन सा पैकेट जाएगा,
मैंने उस मीडियम को, उस फिजिकल मीडियम को कौन सा टर्मिनल एक्सेस करेगा, ओके, कौन सा एक्सेस करेगा, कब एक्सेस करेगा, ओके। अगर मीडियम अगर कभी बिजी है सो इट हैज़ टू वेट, ओके। या फिर अगर कभी अगर मल्टीपल अगर कभी यूज़ कर रहे हैं, अगर मल्टीपल टर्मिनल्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर यूजिंग द सेम फिजिकल मीडियम, देन उनका जो एक्सेस है वो कंट्रोल में होना चाहिए, अदरवाइज द पैकेट हमारे लॉस्ट होना शुरू नहीं, ओके। So your MAC layer is all about the controlling the access of this physical medium. The second is one that is LLC. यानी कि अगर आपको नहीं समझा हो तो जस्ट इतना समझो मैक के बारे में, MAC दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल, कि आपका जो फिजिकल मीडियम है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर 1, ओके, दिस इज कंप्यूटर 2, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इसको थोड़ा मैं वो कर लेता हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि ये आपका, हाँ देखो यहाँ पर आप हम लोग आने वाले हैं अभी। सो दिस इज माय एंड सिस्टम, ओके, दिस इज माय एंड सिस्टम। तो एंड सिस्टम यहाँ पर हम लोग क्यों बोलते हैं किसी भी टर्मिनल को, किसी भी डिवाइस को, कंप्यूटर को, यू कैन से एंड टर्मिनल, ओके, एंड सिस्टम, ओके। सो दिस इज माय वन कंप्यूटर, ओके, दिस इज माय वन कंप्यूटर, दिस इज माय अनदर कंप्यूटर, दिस इज माय अनदर कंप्यूटर, ओके। सो ADNF उसका नाम दिया है, ओके। So when I'm sending some data, okay, when I'm sending some data, थोड़ा सा पीछे आते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ। So if I'm sending some data from this A to D, okay, when I'm sending some data from A to D, तो it has lot of stop, ठीक है, बीच में काफ़ी सारे इसके stop, ये आपकी लिंक है, ये आपका फिजिकल मीडियम है, ओके, मे बी एनी ट्रांसमिशन मीडियम, ओके। यहाँ से आपका बीच में एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इट इज कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट सिस्टम, इंटरमीडिएट डिवाइस, ओके। यहाँ पर वापस से एक लिंक है, फिर एक राउटर है बीच में। देखो ये जो हमेशा जो क्रॉस सिंबल आती है, तो क्रॉस सिंबल जो आपका जो एक जो इस टाइप रहता है, जो जिसको हम लोग राउटर से टर्न करते हैं, राउटर से इसको हम लोग पहचानते हैं। तो बेसिकली आपका ये सिस्टम से लेकर ये सिस्टम तक डेटा जो जाना है, तो उसके अंदर काफ़ी आपके लिंक्स है, एंड दोज आर दी फिजिकल लिंक बेसिकली। तो मे बी आपकी जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है वो लिंक है। नाउ दिस लिंक के अंदर जो डेटा आपका जा रहा है, ओके, तो ये हमारा कंट्रोल वे में होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इफ सिस्टम एफ वांट्स टू सेंड सम डेटा टू सिस्टम डी, ओके, अगर सिस्टम एफ को एफ वाले कंप्यूटर को कुछ डेटा सेंड करना है टू दी सिस्टम डी, तो इसका भी डेटा जाने वाला है, यहाँ से सेम लिंक से इसका भी डेटा जाने वाला है, और सेम लिंक से इसका भी डेटा जाने वाला है, ओके। तो इट मीन दैट ये वाली जो लिंक है आपकी, फ्रॉम दिस लिंक, जो आपके जो फिजिकल मीडियम है, सो दिस फिजिकल मीडियम इज बीइंग यूज्ड बाय ए एंड एफ, ओके, और मे बी एट द सेम टाइम, it may happen at the same time. So our MAC layer is responsible for handling, for managing the multiple packets which are coming from A, which are coming from F, okay। तो दोनों से जो आ रहे हैं आपको, तो वहाँ से उनके पैकेट्स को हैंडल करना, मैनेज करना, और तो उसका उसका काम है बेसिकली मीडियम एक्सेस कंट्रोल का, ओके। तो ये आपका मैक है। उसके बाद में LLC है, विच इज़ बेसिकली एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन फिजिकल लेयर एंड अदर लेयर। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए है LLC। इसका इतना पार्ट नहीं है, बट आपका मैक ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। ओके, वन मोर थिंग, एंड दिस लेयर पैक्स द डेटा इनटू फ्रेम्स। आपका जो डेटा है वो फ्रेमिंग, इट इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। देखो नीचे लिखा हुआ है, द कन्वर्टिंग डेटा इनटू फ्रेम्स इज कॉल्ड फ्रेमिंग, ओके। सो बेसिकली एट दिस लेयर, इस लेयर का एक जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो वो ये है कि फ्रेमिंग, ओके। सो बेसिकली इट प्रोवाइड फ्रेमिंग। द डेटा is divided into multiple size of parts, and then these parts are framed, these frames are packed into the frame, okay। तो basically framing होती है यहाँ पर, and after that frame contains hardware address of the sender and receiver। remember, अभी तक आपके पास में लॉजिकल एड्रेस नहीं है। लॉजिकल एड्रेस मतलब आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ओके। आईपी एड्रेस नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज मैक एड्रेस, ओके। वी हैव टू काइंड ऑफ एड्रेसेस हम लोग को आगे आएगा, बट स्टिल गो थ्रू इट। Basically address are of two type, one is the logical address, second is the hardware address, or we call it the machine address। आईपी एड्रेस भी बोलते हैं इसको, लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस एक ही नाम है, ठीक है। उसके बाद में हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस, ओके। आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है,
मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस चेंज नहीं होता है, इट इज़ प्रिंटेड ऑन योर लैन कार्ड। जो भी आपके सिस्टम में जो लैन कार्ड होता है, जो नेटवर्क कार्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क कार्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईथरनेट कार्ड, तो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है। सो दैट इज फिक्स। ओके, तो हार्डवेयर सॉरी लॉजिकल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस। तो यहाँ पर आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, फ्रेम कंटेन हार्डवेयर एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। ओके, तो आपका पैकेट कहाँ से निकला है। ओके, look at the diagram। तो आपका पैकेट कहाँ से निकला है, दैट इज फ्रॉम सिस्टम ए। ओके, तो सिस्टम ए का हार्डवेयर एड्रेस और उसका जो, और उसके बाद में जो रिसीवर है, जो रिसीवर का भी आपके पास में रहना चाहिए। तो रिसीवर यहाँ पर बेसिकली आपका जो हार्डवेयर एड्रेस होता है वो आपके नेक्स्ट होप का उसके अंदर ऐड होता है। तो यहाँ पर आपका सेंडर और रिसीवर दोनों के अंदर उसका, दोनों के जो हार्डवेयर एड्रेसेस रहेंगे, यानी कि जो दोनों के मशीन एड्रेसेस रहेंगे, तो वो आपके इसके अंदर ऐड होते हैं, ऐड डेटा लिंक लेयर। ओके, और इसके बाद में इथरनेट एड्रेस इज द मैक एड्रेस। तो इथरनेट एड्रेस, मशीन एड्रेस, मैक एड्रेस इसको हम लोग बोलते हैं। The data link layer is responsible, again a tagline or important line. The data link layer is responsible for moving frames from one hoop to the next hoop. Okay, so basically पूरा जमा करेंगे, so you will find one statement that the data link layer is responsible for moving frames. Okay, अब यहाँ पर हम लोग डेटा फाइल के चक्कर में बात नहीं करेंगे। Okay, now we'll talk in terms of frame। Okay, whenever you are at the data link layer, so always talk in the frame। ठीक है, so the data link layer is responsible for moving frames from one hoop to another hoop। okay, आपको ये समझना है कि one hoop to another hoop कैसे। okay, अब डायग्राम आपको एकदम ध्यान से देखना है, बिकॉज दिस डायग्राम विल ऑल्सो बी रिफर्ड फॉर द नेक्स्ट लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। तो दोनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है। ओके, ट्राई टू फोकस ऑन इट। This is hope to hope delivery। On the top I have written hope to hope delivery। Okay, just imagine the diagram। थोड़ा सा ये पहले डायग्राम को समझते हैं। The first one from left hand side, मेरा लेफ्ट है, आपका हो सकता है आपका भी लेफ्ट ही रहना चाहिए। So from left hand side you have a system, that is the end system। अभी हम लोगों ने डायग्राम को समझा है, पर उससे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। So we have basically on the left hand side we have the source one। ठीक है, that is system A। This is also called the end system। Okay, any terminal। So system A, on the right hand side I have two receivers। Okay, अब किसको भेजना है आपके ऊपर है, बट हम लोग ने दो रिसीवर कंसिडर किए। ओके, सिस्टम डी एंड सिस्टम एफ। ओके, अब यहाँ पर मुझे जो डेटा सेंड करना है, आई नीड टू सेंड द डेटा टू सिस्टम एफ। ओके, सो माई सोर्स कंप्यूटर, माई सोर्स टर्मिनल इज सिस्टम ए एंड माई receiver or my destination computer, my destination terminal, my destination and system is terminal F। okay, तो मेरा सोर्स है A और मेरा डेस्टिनेशन है F। तो मुझे A to F जाना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, अब ज़ाहिर बात है, मैं यहाँ से अगर मेरे फ्रेंड को वो सिटिंग इन द थाने सिटी, आई एम इन द नवी मुंबई, एंड मुझे कहीं और फॉर एग्जाम्पल मुंबई भेजना है, बिकॉज हम लोग सेम में आ जाते हैं। तो अगर मुझे दूर किसी को भेजना है, आई मीन नेरुल फॉर एग्जांपल, एंड आई वांट टू सेंड सम डेटा टू अ फ्रेंड हु इज सिटिंग इन द मुंबई। ओके, सो ज़ाहिर बात है, जब मेरा डेटा यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले मेरे राउटर से होते हुए फिर किसी और, फिर वहाँ पे किसी और मेन राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर से राउटर, राउटर से राउटर, और दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस से होते 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 देन इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन। ओके, तो वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया। यू विल फाइंड intermediate system over here। okay, this is the intermediate system, this is the intermediate system, and this is the intermediate system B, C and E, these are the intermediate system। these are nothing but the routers। okay, maybe any networking device which are situated in the which are situated between the two networks। okay, so you may consider it as this is one network in which our system A is present। okay, तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ using ball pen। okay, so this is, I think this is a network one। okay, for example ये मेरा network one है। okay, in network one terminal A is situated। okay, and I'm in Navi Mumbai। okay, and I'm in Nerul। okay, so मैं ये नेरुल के अंदर हूँ। okay, and I want to send some data to my friend who is sitting in the Mumbai। okay, maybe in फोर्ट। ओके, सो ये आपका मेन मुंबई है। ठीक है, तो मेन मुंबई के अंदर ये आपका फॉर एग्जांपल दिस इज नेटवर्क टू, दिस इज नेटवर्क टू। ओके,
सो माई सोर्स कंप्यूटर इज सिचुएटेड इन नेटवर्क वन, जो कि आपका नेरुल में है, एंड योर डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज सिचुएटेड इन मेन मुंबई, ओके, विच इज सिचुएटेड इन द नेटवर्क टू, ओके। सो आपका दोनों के बीच में बहुत सारा, आप थोड़ा इमेजिन, आप थोड़ा बाहर देखेंगे सो यू विल इमेजिन कि आपके और उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो नेहरू से लेकर मुंबई तक कितना बीच में डिस्टेंस है, ओके। एंड जो आपका ये पूरा डिस्टेंस है उसके बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स रहेंगे, ओके। सो यू विल फाइंड ये एक बीच में कहीं किसी का नेटवर्क है, यहाँ पर नहीं है किसी का नेटवर्क, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क हो, बिकॉज ये तो आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, ओके। तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ के पैकेट को वहाँ पर, वहाँ के पैकेट को यहाँ पर करने के लिए हेल्प करेगा। तो यू हैव वन नेटवर्क इन बिटवीन ऑफ दैट, यू हैव वन नेटवर्क यहाँ पर बीच में। तो ऐसे बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स, और उसके अंदर भी काफ़ी सारे, उसके अंदर बहुत सारे आपको कंप्यूटर्स रहेंगे, यानी कि बहुत सारे सिस्टम उसमें कनेक्टेड है, या उस नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे सब नेटवर्क्स रहेंगे। सो ऐसा पॉसिबल है। तो एक पूरा ये मैस है, पूरा एक डब आपका, मतलब कि जिसको बोलेंगे बहुत सारे नेटवर्क्स का एक जंजाल है। सो यहाँ पर से अगर आपका पैकेट निकलता है तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद में ये एक तो बेसिकली एक लिंक है, तो लिंक से होते होते ये राउटर तक पहुँचेगा। नाउ द राउटर विल सर्च फॉर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, योर राउटर विल सर्च फॉर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो वो पैकेट जो आएगा इसके पास में, फॉर एग्जांपल ये है पैकेट, और आपके ये सिस्टम आपके बी के पास में आया है, ओके। व्हेन इट रीचेस टू द बी, देन बी विल आस्क हिम, ओके। बी उसको पूछेगा भाई तू कहाँ से आया है, तो वो बोलेगा ए के पास से आया हूँ। वो उसको बोलेगा तुझे कहाँ पे जाना है, वो बोलेगा मुझे कहाँ जाना है, मुझे एफ के पास जाना है, ओके। लेकिन एफ के पास जाना है ये कब बताएंगे, ये अभी नहीं बताएगा बेसिकली, ये कब बताएगा, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर हमको पता चलेगा। तो यहाँ बेसिकली जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर के अंदर वो वन होप से नेक्स्ट होप तक जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। योर डेटा लिंक लेयर विल प्रोवाइड अ हेल्प टू गो फॉर द नेक्स्ट होप, ओके। कैसे, यहाँ पर है, हाँ, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप, ओके। तो बेसिकली आपका जो डेटा लिंक लेयर है, इट इज वर्किंग फ्रॉम होप टू होप डिलीवरी, ओके। तो बेसिकली होप टू होप डिलीवरी पे काम है, यानी क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपका फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेंड सम डेटा, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, यू वांट टू सेंड सम डेटा, ओके। सो मे बी यू आर सेंडिंग सम MP3 फाइल, ओके। आप एक रिंगटोन उनको भेजना चाह रहे हैं आपके फ्रेंड को, सो यू हैव अ रिंगटोन फाइल विथ यू, ओके। नाउ व्हाट सिस्टम हैज डन, सिस्टम ने उसके कुछ टुकड़े किया, ओके, उसके 4 टुकड़े किया फॉर एग्जांपल, ओके, यानी कि 4 पैकेट बना दिया, ओके। तो ये 4 पैकेट बन गए, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 और ये पैकेट नंबर 4। अब ये 4 पैकेट बन गए, अब फर्स्ट पैकेट आएगा। अब फर्स्ट पैकेट में क्या होगा, एट द डेटा लिंक लेयर व्हाट इट विल बी डन, उसके अंदर एड्रेस जाएगा, ओके। जैसे कि एड्रेस मैंने यहाँ पर क्या बताया, फ्रेम कंटेन हार्डवेयर एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, ओके। तो ये आपका पहला फ्रेम, इसकी फ्रेमिंग होगी, तो फ्रेमिंग होगी इसके अंदर हार्डवेयर, इसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जाएगा। तो सोर्स कौन, ए इज द सोर्स, ओके। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू फोकस, ये आपका सोर्स ये है। अब और आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, तो डेस्टिनेशन अभी फाइनल डेस्टिनेशन आपका इसमें नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज बी, ओके। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज बी, ये बी ऐसा है जो हमको और आगे पहुंचाएगा, ओके। सो यार फर्स्ट आपका जो पैकेट है उसकी फ्रेमिंग होगी, फ्रेमिंग के अंदर आपके उसके हार्डवेयर एड्रेस जाएंगी, हार्डवेयर एड्रेस यानी कि आपका सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस एंड डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस। तो सोर्स एड्रेस तो आपका ये हो गया, ओके। आपका डेस्टिनेशन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, ओके। तो ए एंड बी आ गया। अब ये आपका पैकेट पहुंचा, ये पैकेट चलते 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 पहुंच गया बी के पास में। आफ्टर रीचिंग एट बी, आफ्टर रीचिंग एट बी अगेन, बी उसको पूछेगा भाई तू कहाँ से आया है, वो बोलेगा ए के पास है, कहाँ जाना है, तो बोले मेरे को आपके पास नहीं आना था लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। ये हमारा नेटवर्क लेयर उसको बताएगा, बिकॉज नेटवर्क लेयर हैज़ द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लॉजिकल एड्रेस भी उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पर उसका एड्रेस वो चेंज करेगा, ओके, बोले ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोर्स कौन है, तो सोर्स ये आपका बन जाएगा बी, ओके। हार्डवेयर एड्रेस के अंदर सोर्स बन जाएगा बी, और उसका डेस्टिनेशन कौन रहेगा, सो द नेक्स्ट होप इज ई, द नेक्स्ट होप इज बी, ई सॉरी ई।
तो यहाँ पर सोर्स में, यहाँ पर जब वो वापस से पैकेट फॉर्म करेगा, वापस से जब उसकी फ्रेमिंग करेगा, तो उसमें जो सोर्स एड्रेस है वो कौन रहेगा? द सोर्स एड्रेस विल बी, द सोर्स एड्रेस विल बी बी, एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी ई। ओके, तो आपका पैकेट यहाँ से निकलेगा, बराबर यहाँ तक पहुँचेगा। आफ्टर रीचिंग एट ई, आफ्टर रीचिंग एट ई, after reaching at E, so again that packet will get changed. Okay, पैकेट के जो एड्रेसेस है वो वापस से चेंज होगी। और कैसे चेंज होंगे अभी इसमें, यहाँ पर उसका सोर्स बन जाएगा E और डेस्टिनेशन बन जाएगा F। ओके, so just try to understand with the help of this data link layer, your data link layer is responsible for hope to hope delivery, it is not responsible from source to the destination directly। okay, तो एक होप से दूसरे होप तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ से ए से लेकर बी तक पहुँचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आपका डेटा पहुँच गया। फिर बी से ई तक पहुँचने के लिए अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल, उसने पहुँचा दिया आपका माल। ई से वापस एफ तक अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल, सो योर डेटा विल रीच एट दी एफ। ओके, तो ये आपका जो है ये होप टू होप डिलीवरी है बेसिकली। ओके, एंड अभी अभी मैं बता रहा हूँ, योर नेटवर्क लेयर जो इसके बाद का लेयर है, your network layer is responsible from for a delivery of packet from A to F directly। okay, तो आपका ये होप टू होप डिलीवरी के लिए डेटा लिंक रिस्पॉन्सिबल है। तो द वेरी बेसिक वन, if anyone asks you regarding the data link layer, then you can say this statement: the data link layer is responsible for moving frames फ्रॉम वन होप टू दी नेक्स्ट होप। ओके, सो एक होप से लेकर दूसरे होप तक जाने के लिए आपका डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अगेन इफ यू विल फाइंड द टैगलाइन फॉर द नेटवर्क लेयर इज responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination host। It is not telling that कि from one hope to the next hope इसके लिए responsible है। It is responsible for the delivery of individual packet from source to the destination। Okay, so again you can find this diagram। अच्छा, one more thing, आपको अगर याद होगा कल मैंने आप लोग को एक क्विज, किसी पॉलिटेक्निक का क्विज था, सो आई फॉरवर्डेड यू पीपल, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने अटेंड किए भी होंगे। सो उसमें 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 क्वेश्चन था, एट द सोर्स साइड, ऑल आर लिसनिंग और नॉट, लेट मी कंफर्म, ऑल आर लिसनिंग? Yes, okay, sorry। So all are listening or not? Aris, yes, Zareen, yes, Omkar, okay। My voice is still lagging? Okay, तो अभी मतलब आवाज़ सही आ रही है? ओके ओके, इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू ओमकार, थैंक यू अरबाज। Okay, first tell me how many of you have attended the previous quiz what I have sent yesterday। जो नेटवर्क का आपका क्विज था एक, मैंने वो आप लोग को सेंड किया था, उसमें से आप लोगों ने कितने लोगों ने अटेंड किया? चैट पे यस डाल दे जाओ कि अटेंडेड ओके, ऐसा कुछ डाल दे जाओ। गुड, okay, those who have attended very good, because those are all are very basic question, even the questions are from the later chapter, but still you can attend this, you can attempt that particular quiz। okay, सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं, you will find some more information। तो उसमें उसमें क्वेश्चन था, लास्ट वन क्वेश्चन। ओके, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि एट द सेंडर साइड, ओके, जस्ट इमेजिन, जब भी मैं आपको बात करूँ सेंडर साइड रिसीवर साइड की, यू नीड टू इमेजिन this diagram। okay, this is the very basic diagram and common diagram for all the sorry, for OSI reference model। so you will find काफी relaxation आप feel करोगे when you see this diagram। so ये diagram, हाँ, at the source side, at the source side
जो भी आपके पैकेट यहाँ से आएंगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से आपका पैकेट रेडी हुआ, ओके, यहाँ सर आपका पैकेट हुआ रेडी। दिस पैकेट विल गोज फर्स्ट टू द एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ओके। फिर जब यहाँ से आएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आएगा, सो द हेडर्स विल बी एडेड और रिमूव। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसे आगे पीछे क्वेश्चन था। तो यार जो आपके हेडर्स होते हैं, जैसे कि हेडर्स कंटेन एड्रेसेस ऑफ द डेस्टिनेशन, तो आपका पैकेट तो यहाँ से बना है। अब इसके अंदर कुछ हेडर्स ऐड होंगे, यहाँ पर तो नहीं होते, नीचे चल के आपके कुछ हेडर्स ऐड होते हैं, ओके। हेडर्स कंटेन दी एड्रेसेस ऑफ दी वॉट जो भी आपका डेस्टिनेशन है। तो इसमें हेडर्स आपके सोर्स साइड पे हमेशा आपके जो हेडर्स है वो ऐड होते हैं, और वही हेडर्स जो यहाँ पर ऐड होते हैं, तो एट द डेस्टिनेशन साइड ऑल दीज हेडर्स आर रिमूव, ओके। जो भी क्या बोलते हैं ना, हेडर और टेलर जो भी होते हैं, सो दोज आर एडेड एट द सेंटर साइड एंड एट द रिसीवर साइड, वो सबको डिटैच करना चाहते हैं, okay. So the things are added at the center side, okay. When the packet reaches to the next layer, okay, when it reaches to the destination, then all these things are getting detached at the receiver side. तो उसमें सब ये हटा, ये रिमूव हुआ। जैसे आपका होता है ना रॉकेट होता है, तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो फिर एक एक करके सारे पार्ट को डिटैच करना शुरू करता है, ओके। तो जो भी इसके फ्यूल सेक्शंस होते हैं, तो उतना बर्न होने का, कंबस्शन होने के बाद में देन दैट पार्ट इज बीइंग डिटैच, ओके। ऑटोमेटिकली डिटैच होता है, फिर वो ऑटोमेटिक होता है डिटैच, ओके। सो लाइक ऐसे हमारा पैकेट है, जब वो ऊपर जाएगा एट द रिसीवर साइड, तो सारे लेयर से पास होते होते जाएगा, तो सारे अपने जो भी हेडर्स उसके हैं उसको रिमूव करते जाएगा, डिटैच करते जाएगा, ओके। तो अब वही वही चीज़ आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे। So this is about the data link layer, okay. So data link layer का the main crux of the data link layer is that your data link layer is responsible for the delivery of for the moving of frame from one hoop to the next hoop, okay. From next to next again it is responsible, but we are asking for only one instance, okay. So data link layer is responsible for moving frames from one hoop to another hoop, okay. So this is all we have done with the help of example we took on. So you can see this is the hope to hope delivery. This is the hope to hope delivery, okay. In hope to hope delivery you will find, okay, in hope to hope delivery your frames will be moved from this A to B, okay। A से B के लिए responsible था, चला गया। Then again from B to E it was responsible, चला गया। Then from E to F चला गया, okay। So all these things will happen in such a way, okay। And this is the diagram, you can say layer wise diagram for the data link layer. So from at the left hand side, obviously at the center side you will find it is getting some data from the network layer। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है, H2 और T2, दैट्स अ हेडर एंड ट्रेलर, ओके। सम पार्ट्स आर बीइंग एडेड, तो यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होने के बाद में इट विल फॉरवर्ड द थिंग्स टू दी फिजिकल लेयर। तो जस्ट आपको एक डायग्राम बताना है, एट द सेंटर साइड वाला, एट द रिसीवर साइड वाला। सेंटर साइड में डेटा ऊपर से आएगा, ये रिसीव करेगा और कहाँ फॉरवर्ड करेगा, नीचे फिजिकल लेयर, okay। In the same way, at the receiver side it will receive the data from the physical layer, it will receive it, accept it, it will detach the thing, you will find कि आप वहाँ से उसको डिटैच करेगा। और डिटैच करने के बाद में देखो ये जो एरो मार्क है, so this is the arrow mark, इतना ही पार्ट, this is the data part which it has received, okay, at the data link layer। So these things are added and forwarded to the physical layer, okay। And after receiving at the receiver side it has received from the physical layer, and then उसको बाद में डिटैच कर दिया गया, डिटैच करने के बाद में जो इसको आगे नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड किया गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम, आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द you can say data link layer. The second layer that is data link layer responsible for moving of frames from one hoop to another hoop, okay। So basically it is having two sub layer, one is media access control, second is logical link control, okay। तो बेसिकली आपके जो फिजिकल मीडियम होता है उसके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए वी यूज द मैथ, दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज नेटवर्क लेयर। थोड़ा सा हम लोग पहले मूव करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, कम से कम 2-3 लेयर हमारी और होना चाहिए। इन नेटवर्क लेयर दिस इज द थर्ड लेयर बेसिकली, ओके। अच्छा, ये शुरू करने से पहले
समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है? शिफा, ओमकार, साकिब, ओके ओके ओके, thank you. Only few people are responding. Okay, it is not recommended that all must respond. But at least अगर आप में से कुछ ने भी दिया तो चलो आई अंडरस्टैंड किया भी हाँ थोड़ा सा उसका क्लियर हो रहा है। ओके, जैसे जैसे आपका ये आगे जाएगा तो वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आती रहेंगी। आपका जो नेटवर्किंग है वो इंटरेस्टिंग भी है और ईजी भी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग। So let us start with the third layer, that is network layer. Okay. So basically, it is a third layer of OSI reference model and responsible for network communication. Okay. So it is responsible for the network communication. Acha, why we are naming as a network communication? Because you can read this one line from the source host to the destination host. यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? Because it is responsible from the source machine to the destination host machine, terminal, computer, okay, whatever is it. तो आपका सोर्स कंप्यूटर से लेकर डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक के आपका इंडिविजुअल पैकेट जब तक पहुंच नहीं जाता, यहाँ से यहाँ तक जब तक पहुंच नहीं जाता, तब तक के लिए आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलो देखते हैं। सो इट हैज़ टू मेजर फंक्शंस। ओके, अब दो जो मेजर फंक्शन है, यू नीड टू रिमेंबर दिस मेजर फंक्शन। ओके, द फर्स्ट वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग। नाउ एट दिस लेयर यू विल फाइंड द लॉजिकल एड्रेस। ओके, यहाँ पर आपको एड्रेसिंग आएगा। ओके, लॉजिकल एड्रेस मतलब फिजिकल, सॉरी, इट इज़ द आईपी एड्रेस। ओके, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 192.168.0.1. Okay. So in logical addressing, basically network layer provide IP addresses to travel the packet in the network. जैसे कि you have some kind of parcel, okay, और अगर आपके पास में किसी का फ़ोन नंबर है, for example we used to have some kind of landline phones, okay, in earlier time. अभी तो किसी के पास में होते नहीं है, बहुत कम, अभी तो रेयर हो गया है, but still people are still using these one. So जब हमारे घर पे पहले फ़ोन हुआ करता था, सो इट इज़ हैविंग नंबर लाइक 022, इट मीन दैट इट्स अ कोड ऑफ मुंबई। ठीक है, तो 022 मुंबई का कोड हो गया। फिर आगे का नंबर 2550435, इट्स अ एग्जाम्पल। ओके, मेरे मेरे घर का नंबर नहीं है, तो 2550435। सो टू सब नंबर के पहले लगता है। ओके, एंड आउट ऑफ दिस 550435, सो ये जो नंबर है, ये नंबर के अंदर देयर इज अ डिवाइडेशन ऑफ दिस नंबर। ओके, एक तो होता है इसके अंदर एरिया कोड। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स properly. Okay, so ये जो आपका phone number होता है, your landline number is having two part. One is the area code, second is the subscriber number. Okay, so your phone number, your MTNL, BSNL, your landline number is having two part. Okay, तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो एरिया कोड, द फर्स्ट एरिया दैट इज 5504, आई थिंक मे बी उसका 3 डिजिट होता है, 4 डिजिट होता है, दैट आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेकिन होता जरूर है। सो द फर्स्ट पार्ट maybe a 3 digit or 4 digit is of the area code। ठीक है, तो किसी का भी समझ गया 5504 मतलब कि हाँ, मतलब ये एरिया का है, सो यू विल कम टू नो द एरिया। उसके आगे का जो नंबर होता है दैट इज द सब्सक्राइबर नंबर। ओके, एंड द सब्सक्राइबर नंबर विल बी अपडेटेड फ्रिक्वेंटली, जैसे जैसे उसमें एडिशन होती जाएंगे और लोग लाइन लेती जाएंगी, सो दैट सब्सक्राइबर नंबर विल गेट इंक्रीज। ओके, सो लाइक वाइज जैसा हमारा लैंडलाइन फ़ोन होता है और उसके अंदर हमारा जैसा दो डिवाइड में इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही आपका आईपी एड्रेस भी होता है। ओके, योर आईपी एड्रेस हैविंग also having two part. One is the network part and second is the host part. Okay, so your first part, network part, will tell you that कि this IP address of which network, ये आपका जो IP एड्रेस है ये कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है। उसके बाद में होस्ट नंबर क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितनावा नंबर आपके आईपी एड्रेस का है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर 50 कंप्यूटर्स आ गए, ओके, इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क 50 कंप्यूटर्स आर वर्किंग, देन उसके अंदर आपका कितना नंबर है आपको शायद उसके होस्ट नंबर से ये पता चले। ओके, so with the help of logic, with the help of logical address, that is the IP address, okay, it is also called as IP address। so IP एड्रेस से हम लोग को ये पता चलता है। ओके,
So logical address, your network layer provides IP address to travel the packet in the network. Obviously अगर आप जैसे अगर आप कभी अपने अपने पार्सल को अपने पार्सल पे या फिर व्हेन यू डिलीवर और सर जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से तो प्रॉपर्ली आप एड्रेस वगैरह सब कुछ डालते हैं. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एड्रेस सो ऑल द थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड. ओके, लाइक अगर इसमें से बहुत सारे पार्सल अगर कंपनी के पास में हो तो फ्लिपकार्ट इज हैविंग ऑल द पार्सल, देन फर्स्ट दे विल सेग्रीगेट कि भाई इसमें मुंबई का कौन सा अलग करो. तो सबसे पहला सेग्रीगेशन मुंबई का हुआ, देन नेक्स्ट नवी मुंबई, तो नवी मुंबई का अलग किया, देन थाने सिटी का, ऐसा मतलब अलग अलग एरिया के वहाँ से कर लिया. देन अब नवी अभी आपका मुंबई का है तो ये आपका ये नॉर्थ मुंबई है, ये साउथ मुंबई है, तो उसके अंदर फिर अलग अलग किए, फिर नॉर्थ मुंबई को भी अलग अलग नहीं क्या. लाइक वाइज आप क्या कर सकते हो, उसका सेग्रीगेशन कर सकते हो, सो दैट your parcel will reach at the destination in a very easily. Okay, तो वैसे ही आपका लॉजिकल एड्रेस का है. ओके, नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस. तो पहला काम, पहला आपका मेजर फंक्शन ये है कि योर नेटवर्क लेयर, द थर्ड लेयर प्रोवाइड द आईपी एड्रेस. ओके, आईपी एड्रेस की प्रोवाइड करते हैं हम लोग पैकेट को, हम अपने पैकेट को आईपी टू प्रोवाइड करते हैं. ओके, वी प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस टू द इंडिविजुअल पैकेट टू ट्रैवल देम इन द नेटवर्क. ओके, नेटवर्क में उनको ट्रैवल करने के लिए हम उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दैट दीज पैकेट विल रीच एट द डेस्टिनेशन इन अ प्रॉपर. ठीक है, आपके ये पैकेट डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली पहुंच जाए. ओके, and the address is responsible to reach the data at destination. Obviously the address is responsible, जैसे हमारा पार्सल पे हमारा एड्रेस होता है तो बराबर पहले हमारा एरिया आ गया क्या कि मुंबई का है, उसके बाद में फिर उसके कोड के हिसाब से फिर हमारा सेग्रीगेशन होते होते हमारा एरिया, फिर उसके बाद कॉलोनी, फिर हमारी बिल्डिंग, फिर फ्लैट नंबर तक बराबर हमारा पार्सल पहुंच जाता है. इन द सेम वे योर पैकेट रीचेस एट द डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस ओनली. Okay, so this is the major function of network layer, that it provide the feasibility of IP addresses. Okay, so हमारा network layer हमको IP addresses provide करता है, so that हमारा IP address हमको हमारा network layer हमको IP address provide करता है, so that our packet can travel in the network. Okay, and will reach at the destination. खाली घूमने के लिए नहीं बल्कि it will reach at the destination. Okay, and obviously all the packets will reach at the destination if they are having correct address. Okay, तो कोई भी पैकेट आपके से घूमेगा नहीं. ठीक है, वो बराबर डेस्टिनेशन पे ही जाने के लिए निकला होगा घर से. ओके, so the first major function provided by the network layer is logical address. The second one is routing. Obviously one of the second major function, routing. It is the responsibility of the layer to transfer the data from one network to another network if required. Routing basically सही रास्ता बताना. जो नेटवर्क लेयर के पास में सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है, बिकॉज देखो अभी इसके पास में इन्फॉर्मेशन लॉजिक यानी आपके पास में आईपी एड्रेस भी आ गया है, आपके पास में मैक एड्रेस भी है. ठीक है, अब जब आपके पास में दोनों चीज़ है, अगर आपके पास में दोनों चीज़ है तो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग यू कैन इजीली रीच एट द डेस्टिनेशन. आप डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि भाई देखो आप ऐसा जाओ. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क अस टू हाउ आई कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर दैट इज वाशी, मुझे कैसे जा सकता हूँ. ठीक है, for example we are in the college. Okay, we are in the AIPDC campus and if someone asks me that I want to go to वाशी, ठीक है मुझे वाशी जाना है, then मेरे पास में मल्टीपल, imagine करो कंसिडर करो कि there is no lockdown situation. Okay, so you have multiple path as I told you in the earlier session. You have multiple way. Okay, आप बाहर से रिक्शा पकड़ो, कांदेश्वर स्टेशन चले जाओ, ये एक रूट है. कांदेश्वर से आप टिकट निकालो, वाशी ट्रेन से चले जाओ, दैट्स द वन रूट. ओके, यू हैव अ बाइक, आप बाय रोड आप चले जाओ, सेकंड ऑप्शन. यू हैव थर्ड ऑप्शन, आप यहाँ से NMMT की बस पकड़ो, यू विल रीच वाशी, थर्ड ऑप्शन. ओके, सो यू हैव, अच्छा आपके पास में और भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ से आप यहाँ से मतलब कि थाने की ट्रेन पकड़ो, थाने चला जाओ, थाने से फिर आप कुर्ला चले जाओ, कुर्ला से फिर वाशी जाओ. वी हैव फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो. बट ये सारे ऑप्शन में से यू विल टेल मी कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. ओके, if he is having bike then he can easily go by road. Okay, and if he wants to go by the train, then the train is a सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ वाला रास्ता. ओके, इसमें पैसे भी कम लगेंगे और आप जल्दी से पहुंच भी जाओगे. ओके, सो routing basically
diverting a packet diverting a packet to the correct path. ठीक है, उसको करेक्ट पाथ पे डालना, करेक्ट रूट पे डालना, बेसिकली राउटिंग कहलाता है. ओके, सो योर नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस राउटिंग ऑल्सो. ओके, तो किसी भूले को, किसी भटके को सही रास्ता बताना ये आपका राउटिंग कहलाता है, नेटवर्क कहते हैं. ओके, विल लर्न मोर अबाउट दिस राउटिंग. ओके, सो नीचे एक वो लिखा उन्होंने, स्टेटमेंट आईपी एड्रेसेस इज यूज्ड इन दिस लेयर. ओके, आईपी एड्रेस के पहले यूज नहीं हुए, लेकिन ये लेयर पे आईपी एड्रेस यूज होता है. ओके, सो नेटवर्क लेयर के अंदर दो मेजर फंक्शन ये प्रोवाइड करता है. वन इज द लॉजिकल एड्रेसिंग, मतलब हमको ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, एंड द सेकंड इज द राउटिंग. ओके, network layer is responsible, again the green line tagline, that is network layer is responsible for the delivery of individual packet from source host to the destination. ठीक है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये डायग्राम, सोर्स टू द डेस्टिनेशन डिलीवरी, एक डायग्राम आप लोगों ने यहाँ देखा था. आप लोग समझेंगे शायद दोनों डायग्राम सेम, बट बोथ द डायग्राम्स आर नॉट सेम. ये वाला डायग्राम यू विल फाइंड, ओके, होप टू होप डिलीवरी, होप टू होप डिलीवरी, होप टू होप डिलीवरी, मतलब कि ए से बी तक पहुंचा, बी से ई तक पहुंचा, ई से एफ तक पहुंचा. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो डेटा लिंक लेयर की है वो यहाँ से यहाँ तक की. अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इसकी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इसकी है, मतलब होप टू होप डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो अब आते हैं आपके नेटवर्क लेयर के डायग्राम. यू विल फाइंड दिस वन, यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा ले रहा है और आगे डेटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड कर रहा है. ओके, अब आते हैं हमारे मेन डायग्राम पे. टाइम हमारे पास में है स्टिल 43 और है ना, तो 2-4 मिनट और हम लोग ले सकते हैं. We can complete this layer. Okay, so in network layer diagram you will find the top heading, that is source to destination delivery. वहाँ पर क्या लिखा था, that was hope to hope delivery. यहाँ पर है source to destination delivery. And in this situation we are having our source as the system A and our destination as system F. Okay, तो you will find थोड़ा सा आपको यहाँ पर thick line दिख रही है. So this is the colorful line we have represented with the help of pink color, so that you will understand that this is the source and this is the destination. Okay, so we have source A, we have destination F. Okay, अब यहाँ पर डायग्राम देखो आपको इजीली शो कर रहा है. यहाँ फ्रॉम ए टू एफ आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका डिलीवरी है, एंड दिस इज होप टू होप डिलीवरी. एंड इन दिस डायग्राम आल्सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि भाई कैसे वो काम कर रहा है, क्योंकि हर जो भी डिवाइस पर, फॉर एग्जांपल दिस इज वन डिवाइस, तो ये आपका एक टर्मिनल है, तो यहाँ पर ऑल द 7 लेयर्स, इट इज पासिंग फ्रॉम ऑल द 7 लेयर्स. फिर यहाँ से ये पहुंचा आपका बी के पास में, तो बी भी आपका क्या है, बी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है. इमेजिन करो, इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस. ओके, सो ये नेटवर्किंग डिवाइस के पास जब पहुंचा, मतलब कि आप ये वाले पार्ट के पास में पहुंचा. ओके, when it reaches to the B, then again it will passes to all the layers, because it is the conceptual layer, it is the conceptual framework. तो हम बस इमेजिन कर सकते हैं, the things are happening, but हम लोग थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि ये पहुंचा B के पास, when it reaches to B, तो B के पास में again it passes to all the layers. ओके, यहाँ से इसके बाद मतलब यहाँ पे हम लोग ये लेवल पे, इसके लिए 3 लेयर आपको बताया. सो यहाँ पहुँचने के बाद में अगेन उसको आगे का रास्ता मिला ई का, फिर आगे बढ़ने आगे का रास्ता मिला एफ का. तो लाइक वाइज ये आपकी जो डिलीवरी है, इट इज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी. ओके, सो विद द ये डायग्राम सिंपल है. अगर इनके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देन यू कैन ड्रॉ द सेम डायग्राम फॉर बोथ द लेयर, दैट इज फॉर डेटा लिंक लेयर एंड फॉर द नेटवर्क लेयर. ओके, और उसको बराबर एरो से मार्किंग करके हम लोग उसको शो कर सकते हैं कि दिस इज द होप टू होप डिलीवरी विच इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर, एंड दिस इज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी which is done by the network layer. Okay, so stopping over here, let me conclude the things what we have done today. Started with the revision part, that is the OSI reference model. Then afterward we learn the layer wise explanation. The first one was physical layer, which was responsible for the which was responsible for the example transferring of signal to the robots, and then robots to the signal at the source and destination respectively. Defining the defining the data rate. Okay, so it defined the data rate also. It provides the synchronization between the sender and receiver, and so on. Okay, and then second one, that is the
the data link layer, which is having two sub layer, that is media access control and logical link control. Okay, and it provide the it provide the MAC layer, or sorry, MAC address also, that is the machine address, that is the hardware address. Okay, so it provides the hardware address for sender and receiver. Okay, and it is responsible for moving of frames from one hoop to the another hoop. Okay, नेटवर्क में पॉसिबल है भाई लोग, नेटवर्क में पॉसिबल है कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे होप आए. ओके, इसके लिए आपके जो आईपी पैकेट जो होता है, आगे चल के विल लर्न अबाउट दैट आल्सो. इन आईपी पैकेट यू आर हैविंग अ होप काउंट आल्सो. ओके, तो होप काउंट इज नथिंग बट हाउ मेनी होप यू हैव कवर्ड. ओके, तो अगर आपका होप काउंट यहाँ पे अगर काउंट करेंगे, अगर होप काउंट यहाँ पे काउंट करेंगे, for example your source is A and destination is F, if you will count the hope, then आपका first hope, या आपका first hope hope 1 यहाँ से यहाँ पहुँचा, hope 2 यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक hope 2, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा hope 3. तो hope count for reaching from source A to destination F is 3. Okay, so this is the hope count. ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपका डेस्टिनेशन इतना नज़दीक ही हो. If you are traveling and if you want to send some data who is far away from you, like I'm sitting in, for example, Navi Mumbai, and I want to send some data to the person who's sitting in the say Gujarat. Okay, तो बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बीच में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो आपका होप काउंट कितना बढ़ेगा? आपका नहीं, आपके पैकेट का होप काउंट, बिकॉज आपका पैकेट कितने होप को क्रॉस करके जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ से निकलेगा मेरा वाईफाई राउट, यहाँ से निकला, फिर आगे गया, एंड सो ऑन. ओके, सो लाइकवाइज मेरे कितने होप आते हैं. ओके, बीच में कितने स्टॉप, बेसिकली थोड़ा सा और लोकल लैंग्वेज में वी कैन से दैट दीज आर दी स्टॉप. ओके जी, कितने स्टॉप बीच में मिल रहे हैं. ओके, सो ऐसा होप काउंट भी होता है, होप काउंट काउंट होता है, एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द आईपी पैकेट. देन उसके बाद में नेटवर्क लेयर, अगेन आई एम एलोंगेटिंग इट. Your network layer is the third layer responsible for network communication from source to the destination. Okay, so it is responsible for the delivery of individual packet from the source to the destination. Major two function, logical addressing, मतलब IP address provide करता है. IP address क्यों provide करता है? Because आपके पैकेट को नेटवर्क में ट्रैवल करना है. ओके, आपके IP पैकेट को नेटवर्क में ट्रैवल करने के लिए it provide the IP address. वो IP एड्रेस है. एंड देन राउटिंग, आपके पैकेट को वो रास्ता बताएगा. ओके, रास्ता, सही रास्ता बताएगा. अच्छा, सही रास्ता बताने के लिए हमारे पास में एल्गोरिथम है, बट ये आपको सही रास्ता, ये आपको सिर्फ रास्ता बताने के लिए, और सही रास्ता बताने के लिए हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम्स है. ओके, तो दैट विल आल्सो लर्न. सो ये था आपका आज का सेशन. ओके, इन दैट वी कवर्ड ओनली 2 layers, the explanation of only 2 layers, but still it is taking time. Then don't worry, एक बार ये आपके लेयर्स अगर अच्छे से होते हैं, then it will be very easy for you people to understand the net OSI reference model. And I hope that after covering this topic, you will be easily you can easily write down about this topic, that is OSI reference model. तो आपका लिए 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो नॉट अ जोक, तो उसके लिए आपके पास कंटेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए. ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग. I'm sending the attendance now. So final year students are still working on this attendance project. Hope so जल्दी हो जाए. I've taken 5 minutes more. Kindly consider.